हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सोशल साइंस विद दीपंकर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज द प्रॉब्लम इन श्रीलंका, व्हाट वाज द कॉन्फ्लिक्ट देयर एंड हाउ दैट कॉन्फ्लिक्ट बिकेम बिगर। ओके, अनलाइक व्हाट had happened in Belgium also there was a conflict, but leaders over there, they sat together and they decided to share power, and as a result of which the problem was sorted out, the conflict was resolved, right? But here in Sri Lanka, the situation became much worse. So how did it all happen? Let us just quickly discuss all that. But before we begin, let us just quickly wrap up with the main points that we had discussed earlier also in the first video, in which I talked about the ethnic composition. So very quickly we'll just go through the ethnic composition once again so that we can understand the nature of problem, what was the problem over there. Okay, so ethnic composition में the two major communities that are living there, which were there in Sri Lanka, the major communities are Sinhalas, comprising 74%, and they are mostly Buddhists. They follow the religion of Buddhism. The Tamils that comprise 18%, they could be either Hindus or Muslims. Got it? Now, within the Tamils, we have two subcategories. The Sri Lankan Tamils comprising 13% and Indian Tamils 5%. Apart from them, there was a percentage, there were Christians also that comprised 7%. Okay, so what was the problem? Let me tell you, the Sinhalas, who were in absolute majority in Sri Lanka, okay, जो Sinhalas थे वो absolute majority में थे। तो नॉर्मली मेजॉरिटी कम्युनिटी में ये टेंडेंसी, ऐसा नहीं कि सभी मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो, लेकिन मेजॉरिटी कम्युनिटी की ये टेंडेंसी होती है कि किसी तरह से गवर्नमेंट को अपने दबाव में लाया जाए, गवर्नमेंट के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करे ताकि गवर्नमेंट उनके हिसाब से पॉलिसीज बनाए, उनके इंटरेस्ट को सबसे आगे रखे, उनके इंटरेस्ट को, मेजॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करे। Okay, the same thing happened over here. The Sinhalas, being majority community, they sought to seek dominance over the government, and they tried to put pressure on the government. And the government over there in Sri Lanka, we know Sri Lanka got independence in 1948. The government over there came under the pressure of the majority community, as a result of which a series of majoritarian policies were adopted there in Sri Lanka. The Sri Lankan government had adopted the majoritarian policies. Many preferential policies were adopted, one after the other, and that had created problem between the two major communities. The two communities, see, in every respect, the Sinhalas were given, more favor. Sinhalas were favored for everything, whether it is the university positions and everything. We are talking about the jobs, or we talk about the political parties which were led by the Buddhist leaders. They were not sensitive to the Tamils. Okay, so we'll discuss all that very quickly. Let me talk about that in detail. Having discussed the ethnic composition, let me draw your attention to the problem over there. Just now I briefly mentioned what was the problem. So the Sinhalas were in majority, okay, and they tried to put the government under pressure. They tried to सीक डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऊपर वो डोमिनेंस करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि नॉर्मली मेजॉरिटी कम्युनिटी में ये टेंडेंसी हो सकती है, और वो चाहते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बनाए, गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स लाए, सिर्फ उन्हीं को ही फेवर किया जाए। ओके, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो दूसरी कम्युनिटीज हैं, जो दूसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी कौन सी थी, तमिल लोगों की, तो तमिल्स को बुरा लगना ही था। जब आप ये देख लीजिए कि किसी घर में अगर मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक बच्चे को ही अगर हर बात के लिए फेवर किया जाता है तो दूसरे बच्चों को तो बुरा लगना बिल्कुल नॉर्मल सी, आप देखेंगे कि उसको बुरा तो लगेगा ही, राइट। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो श्रीलंका में दो कम्युनिटीज थी, सिन्हालास और तमिल्स, तो सिन्हालास के लिए सब कुछ किया जा रहा था, सिन्हालास को हर चीज के लिए फेवर किया जा रहा था, तो तमिल्स इससे बिल्कुल अपने आप को ऐसा सोचने लगे कि हम क्या इस देश के लोग हैं, क्या हम इस देश के निवासी हैं, हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है। जो पॉलिटिकल पार्टीज है या गवर्नमेंट है या कॉन्स्टिट्यूशन भी, उनका कॉन्स्टिट्यूशन पे भी कहीं ना कहीं भरोसा उठ रहा था कि उनके इंटरेस्ट को, तमिल्स के इंटरेस्ट को कौन प्रोटेक्ट करेंगे और तमिल्स की बात कौन करेंगे, राइट। तो जो
श्रीलंका में पॉलिसी अपनाई गई, इसको बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी अपनाई गई। मेजोरिटेरियनिज्म मींस फेवरिंग द मेजॉरिटी कम्युनिटी। ओके, मेजोरिटेरियन जब भी गवर्नमेंट किसी मेजॉरिटी कम्युनिटी को फेवर करते हुए दिखाई देती है एट द कॉस्ट ऑफ अदर कम्युनिटीज। ओके, what happened in Sri Lanka, we saw that how the majority community that was favored in every respect. We'll talk about it just a short while later. Let me tell you, as a result of which a feeling of alienation, a feeling of the Tamils started feeling that whether they are really the people, whether they are really the citizens of their country, are they fitted to live like this? Okay, so this was the problem. Let me tell you, the Sri Lanka got independent in 1948. Okay, and after that, as I said, the majority community sought to put the government under pressure, and the government came under pressure, and government of Sri Lanka adopted majoritarian policies. Okay, the Sri Lankan government adopted majoritarian policies. Okay, that means they started favoring the Sinhala communities. Sinhala communities को वो फेवर करने लगे श्रीलंकन गवर्नमेंट। ठीक है, और एक एक्ट पास होता है 1956। ठीक है, 1956 में एक एक्ट पास होता है, और इसके बाद जो है, जो सिनला लैंग्वेज है, सिनला लैंग्वेज became the only official language, became the only official language. So you can see this will not go down well with the other communities. When only one language will be recognized as the official language, then what about the other communities' languages? Okay, Tamils will feel very hurt because their language was not being recognized as official language. It was their demand. If you are making Sinhala as the official language, the only official language, of course, the Tamils will not take it in a positive way. They'll feel very unhappy. They'll be unhappy over it. Okay, so इस तरीके से आप इस देख सकते हैं कि एक्ट ऑफ 1956 जो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने पास किया था, उसके बाद सिनला को जो है, सिनला लैंग्वेज को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। क्या बनाया गया? ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना, जिससे तमिल लोगों को बुरा लगना। आप सिनला को बनाइए, तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाइए। जैसे हमारे देश में आप देखते हैं कि सिर्फ किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को हमने नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया। हमारे यहाँ पर कई सारे जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, बल्कि रीजनल लैंग्वेजेस को भी हमने तरजीह दी। ठीक है, इससे कोई भी लिंग्विस्टिक कम्युनिटी को ऐसा नहीं लगा कि मेरे लैंग्वेज को या हमारे लैंग्वेज को जो है किसी तरह का कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। ओके, तो यही कारण है कि हमने हमारे यहाँ पर इंडिया में जो है सभी लैंग्वेजेस को, सभी लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज को इक्वल पावर शेयर किया, यानी कि उन्हीं की लैंग्वेज को हमने इंपॉर्टेंस दी। ठीक है, जबकि श्रीलंका में क्या हुआ? सिनला वाज मेड द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके बाद a series of preferential policies, ठीक है, preferential series of preferential policies, ठीक है, were adopted. प्रेफरेंशियल पॉलिसीज क्या है? प्रेफरेंशियल पॉलिसीज मींस चाहे आप यूनिवर्सिटी पोजीशंस हो, ठीक है, चांसलर का पोजीशन हो, जॉब्स हो, यूनिवर्सिटी पोजीशंस, गवर्नमेंट जॉब्स। तो गवर्नमेंट जॉब हो, यूनिवर्सिटी पोजीशंस हो, सब में जो है किसको प्रेफर किया जा रहा था? सिनलास को प्रेफर किया जा रहा था। ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना। ओके, फिर उसमें हम देखते हैं कि इस तरह के जो पॉलिसीज अपनाई गई, वन आफ्टर द अदर,
such policies created a feeling of alienation among the तमिल्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ऐसा सिर्फ एक ही पॉलिसी नहीं बनाई गई, सीरीज ऑफ पॉलिसीज जिसमें सिनेलस को प्रेफर किया गया हर चीज के लिए, चाहे गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें, यहां तक कि जितने पॉलिटिकल पार्टीज भी थे, अगर हम बात करें कि पॉलिटिकल पार्टीज विच वर लेड बाय द बुद्धिस्ट लीडर्स, दे वर नॉट सेंसिटिव टू द तमिल्स। ओके, तमिल्स वुड, एज आई सेड दैट their language was not recognized, right? Plus we also know that under the Act 1956, Sinhala was made the only official language and Buddhism was to prosper. Okay, by the actions of the state. Okay, it would be a state policy to promote and prosper, to allow the Buddhism to spread. So you would see that in terms of religion also, the Tamils were at the receiving end. Tamils लोगों को जो है ये इसमें भी उनको बहुत बड़ा एक तरह से निराशा ही हाथ लगी। निराशा के हाथ लगी कि ना उनके लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया, ना उनके रिलीजन को किसी तरीके से, जैसे हमने देखा कि तमिल्स दे कुड बी आइदर हिंदूज और मुस्लिम्स। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पूरे श्रीलंका में सिनेलास जो रिलीजन फॉलो करते थे उसी को ही प्रमोट करने का काम एक स्टेट पॉलिसी के तहत बनाया गया, जिसकी वजह से जो है दूसरे रिलीजन के लोग, जैसे हम हमारा देश का अगर हम एग्जांपल देते हैं तो देखिए हमारे देश में वी आर ए सेकुलर नेशन, यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को स्टेट रिलीजन नहीं बनाया गया। ओके, स्टेट ने सभी रिलीजन से बराबर दूरी भी बनाई रखी है, लेकिन हम सेकुलरिज्म के फीचर्स की यहाँ बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को हम स्टेट रिलीजन हमने नहीं बनाया। जबकि यहाँ पर क्या कोशिश की गई थ्रू द एक्ट, ओके, जिस तरह से सिनेला बिकेम द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, ऐसे ही बुद्धिज्म को जो है स्टेट पॉलिसी के तहत प्रमोट करने का काम किया गया एट द कॉस्ट ऑफ अदर रिलीजियस। ठीक है, तो दूसरे रिलीजन वाले लोग जो है, दूसरे रिलीजियस कम्युनिटीज को, उनको तो जाहिर सी बात है अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, इस बात को आप देखिए, समझिए, बहुत ही सेंसिटिव बात बताई जा रही है कि किस तरह से तमिल, ना उनको गवर्नमेंट जॉब्स में किसी तरह का प्रेफरेंस है, किसी तरह का कोई यूनिवर्सिटी पोजीशंस में कोई किसी तरह के उनको फेवर करने की भी बात नहीं है, लेकिन बराबरी के, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की गई है। ठीक है, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं किया गया। तो तमिल्स लोगों की जो डिमांड थी वो अपने, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म करने लगे। ठीक है, अपना स्ट्रगल किया, उन्होंने जो है अपनी डिमांड्स रखी कि मेजर 3 डिमांड्स कौन से थे कि तमिल शुड ऑल्सो बी रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, प्लस रीजनल ऑटोनॉमी की बात की गई। किसकी बात की गई? रीजनल ऑटोनॉमी। रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए जिन जिन जगह पर तमिल्स की ज्यादा बहुलता है या तमिल्स ज्यादा रहते हैं, कम से कम वहां पर उनको ऑटोनॉमी मिले, सेल्फ गवर्निंग राइट्स मिले। ओके, राइट, तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी, उम्मीद है कि रीजनल ऑटोनॉमी वो उनको मिले, प्लस इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो 3 मुद्दे, 3 डिमांड्स उनकी थी तमिल्स की। एक, उनकी जो लैंग्वेज है तमिल, दैट शुड बी मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज, एंड सेकेंड इज रीजनल ऑटोनॉमी। हमें मालूम है कि तमिल्स जो श्रीलंकन मैप में हमने डिस्कस किया था, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ज्यादातर उनकी संख्या है, ज्यादातर लोग नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में रहते हैं तमिल्स। ओके, तो कम से कम उनको रीजनल ऑटोनॉमी मिले, उनके पास सेल्फ गवर्निंग राइट्स हो। जब उनकी ये डिमांड्स रखी गई, उनकी डिमांड्स को बार बार रिफ्यूज किया गया, उनकी डिमांड्स को माना नहीं गया। तो ऐसे में दोनों कम्युनिटी के बीच में डिस्ट्रस्ट और बढ़ता गया। दोनों कम्युनिटीज के बीच में, सिनेलाज और तमिल्स के बीच में जो रिलेशन है वो और खराब होती गई, राइट? क्योंकि गवर्नमेंट की जो मेजोरिटेरियन तरीका था, मेजोरिटेरियन पॉलिसीज से मेजोरिटी कम्युनिटी को फेवर करने का जो
डिसीजन था वो कहीं ना कहीं तमिल्स को ये महसूस करा रहा था कि हम क्या वाकई इस देश के लोग हैं, हमारे साथ इस तरीके से सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सौतेला व्यवहार की वजह से गवर्नमेंट शुड बी एक्टिंग लाइक ए पेरेंट फिगर, राइट। ऑल इट्स सिटीजन्स इन द कंट्री, जितने भी सिटीजन्स है, ऑल द सिटीजन इन द कंट्री शुड बी सीन एज इट्स just like a father, who cannot discriminate between his kids, right? Ideally a father or the parent should be taking care of all of their children. They're not supposed to create any division between and among the children by discriminating with any of their child. Okay, they should treat equally with all the children. In the same way, the government should treat all its citizens in an equal manner. And equality of opportunity should be given to all in government jobs, in university positions, in everything. Okay, there should not be any discrimination. And you can see when power is not being shared, then the result was what? The situation in Sri Lanka became much more, problematic. The relations between Tamils and the Sinhalas became more strained over time. And ultimately, that situation became so worse that it led to the civil war. And in the civil war, thousands of people across the communities, across all communities, they've been killed. Many were forced to flee their country. They've been forced to leave their country and go to some other countries. Okay? You must have read or you will read in your class 10th eco book also that how Sri Lanka is one of the top performing countries as far as education, health and socio-economic development is concerned. But because of the civil war, it had a very, very terrible setback. Okay, that you have to understand, that when power is not shared, then what happens? Okay, so children, through the case studies of Sri Lanka and Belgium, we had understood one thing very clearly, that in Belgium, where power was shared, where the central government was supposed to share power with the state governments, regional autonomy was, accepted. People became happy over there as a result of, the way the power has been shared. All the communities felt happy. So the problem was sorted out there in Belgium in an amicable manner. Though there was a situation of bargain that I already discussed about, I told you that, but it is not merely a situation of bargain there in Belgium. The willingness to share power is something probably was much more important. See, otherwise what would have happened? You see the Dutch, who were in majority, and they could have taken the advantage of their numeric presence. They were more in number, they could have had their way. But nothing like that. But you saw that how the leaders of both the communities, they sat together and how they decided to share power, and they sorted out the problem, in a very peaceful manner, and result was also very fruitful. That all that we had discussed. But here in Sri Lanka, the situation went out of control. Civil war happened. Okay, finally that civil war also ended in 2009. But the socio-economic development, in the health sector, in the education sector, whatever progress Sri Lanka had made because of this civil war, you can say there was cold water poured over it. So इस तरीके से जो है पावर जब शेयर नहीं होता है तो किस तरीके से जो परिणाम जो है वो कितने घातक हो सकते हैं, कितने एक्सप्लोसिव हो सकते हैं, वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, दोनों कंट्रीज डेमोक्रेसीज हैं, बट दोनों कंट्रीज डेमोक्रेसीज के बाद भी हम ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री डेमोक्रेटिक बन जाती है और बोलते हैं कि देखो हम तो डेमोक्रेटिक हो गए हैं, अब हम लोगों को राइट्स दे रहे हैं। हर कंट्री ये शायद दावा भी करेगी, शायद आज देश में, आज वर्ल्ड में कोई कंट्री डेमोक्रेटिक ना भी हो तब भी वो कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक, राइट। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी सिर्फ आप एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, इज अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, लोगों को अधिकार देने का, लोगों के अधिकार को सम्मान करने का, एक दूसरे को सुनने का, समझने का, यही बात डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है दोनों डेमोक्रेसीज हैं, लेकिन दोनों ने अपने अपने प्रॉब्लम्स को किस तरह से उन्होंने, आप ये देखोगे कि श्रीलंका में तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर पाए और वहां सिविल वॉर हुआ, पावर शेयर नहीं हुआ तो सिविल वॉर हुआ, जबकि बेल्जियम ने एक अच्छा उदाहरण पेश किया।
तो ये सारा डिस्कशन था बच्चों। अगले वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पसंद करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे हाउ different forms of power sharing is there that we will discuss in detail. Okay, for the time being, thank you so much for watching the video and have a nice time. Bye bye.